So hey, welcome to Farmies. Let's make it easy. This is the unit first, pre-formulation studies. The subject is industrial formulative, which was earlier known as industrial pharmaceutical, something like that. So in this unit, we have to learn about pre-formulation studies, like their introductions, goals, objectives, and the physiochemical characteristic of the drug substances. In further, we need to classify their physical properties and the chemical properties. In physical properties, we have to learn about the physical form like crystals or amorphous, particle size, shapes of the particle, flow properties, soluble profiles, and the polymorphisms. And in chemical properties, we have to learn like hydrolysis, oxidation, reduction, racemization, polymerization. And the last but not the least, the most important topic in this unit, which is BCS, classifications of the drug and their significant. In this, we have to discuss like application of the pre-formulation consideration in the development of solid, liquid, and parental dosage forms and impact on the stability dosage forms. Before heading to this unit, let us talk something basic things regarding an important which is related to this unit, which is like suppose we have to make a drug, and before making we need to learn the pre-formulations. What is pre-formulation? Like it is the idea, or we can say it is the blueprints of a drug which are going to be made. You can say you can consider it as a blueprint of the drug. What is blueprint? Blueprint are the designs by which we can follow that blueprint and make similar but in high amount and similar kind of drugs. So what we have to do to make drug? First, we need to know this stability and the therapeutic formulation and the toxicokinetic studies. What is toxicokinetic studies? Like suppose you have made a drug, but there are some possibility of the adverse effect of that particular drug will, and idiosyncrasy will be considered into the toxicokinetic studies. Suppose you are making a drug, or you are making pre-formulation diagram for which you have to make a drug. What you have to do? The things you have to do to make a drug, like you have to test their physical testing, like you have to test the particle size of the drug that you are making, shapes of the drug that you are making, hygroscopicity. What is hygro means humidity. Okay, the amount of humidity or the amount of moisture that your drug can absorb from the surrounding, it is known as the hygroscopicity. And the polymorphism, crystallinity, crystal form, rheology, and the flowability. And there are some regulatory perspective like IND, AND, NDA, ANDA, CMC. We will discuss this later in the upcoming slides. And we also have to know the chemical analytical testing like pKa, chirality, stability, partition coefficient, XRD, DSC, TEM, and SEM, mass spectrometry, titrations, and the HPTLC, TLC, and so on. And after all the tests, you have to make the formulative developments like formulation analysis regarding to the stability. For the stability or for your drug, we need to analyze your drug before heading it to the market. Stability, and we also have to check the impurity and the drug excipient stability and the pharmacokinetic or the pharmacodynamic of, like you have to evaluate your drugs before heading it to the market for selling purposes. And then if all the things is gone very good, then it will head to the large scale production and the marketing. So this is the basic diagram for the pre-formulations. Now let's start the chapter. What is pre-formulation studies? The term pre-formulation is made up from two words which are pre means before and the formulation means to make. Development of a new drug entity. Okay. So the meaning of this is that suppose you are making a new drug, or या फिर कोई भी company is making a new drug. Okay. So before making a new drug, they need to research and understand the pharmacological role to the body. And suppose सब कुछ हो गया है और फिर भी
एक न्यू ड्रग को बनाने में क्या क्या एफर्ट लगता है कंपनी का। तो सबसे पहला थिंग, कंपनी का एफर्ट बहुत लगता है, ठीक है। सालों की रिसर्च लगती है, टीम लगता है बनाने में, रिसर्च टीम बनाने में, सब कुछ लगता है, रिसर्च लैब बनाने में और डेवलप करने में, सर्टिफिकेशन लेने पे। और ऐसे ही आप किसी पे भी टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से लाइसेंस होता है, ह्यूमैनिटी रिसोर्स का, बहुत सारी चीज़ का, ठीक है। तो एफर्ट बहुत लगता है, साथ ही साथ बहुत पैसे भी खर्च होते हैं एक रिसर्च को करने में। व्हेन आई से कि बहुत पैसे लगते हैं, इट्स लाइक $800 million, okay, in Indian rupees how much it would be? It would be like 8 6 are 54 to 70 100 million, and 1 million is considered as 10 lakh, which means around 7,000 million, लाइक अरबों रुपए लग जाते हैं, और कई लाख करोड़ों से अरबों रुपए लग जाते हैं एक ड्रग को लॉन्च करने में, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं होते, एफर्ट ही खर्च नहीं होते, साथ ही साथ बहुत साल भी लगते हैं एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए। कम से कम 10 to 15 ईयर्स मिनिमम है ये, मिनिमम। मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है। कई बार तो एक साइंटिस्ट या रिसर्चर पूरी लाइफ स्पैन भी यूज कर लेता है, फिर भी नहीं बन पाता है वो ड्रग, ठीक है। And I don't want to waste your time in the first unit because it is very simple and easy. That's why I will not recommend you to go in the deep, because these are the topics which will be come in your exam for 2 marks, and there are less probability that it will be come into your 5 marks of questions. That's why don't waste your time to learn this in very deep, okay. And for the GPAT exam, you have to learn so many things, not in deep, but you have to cover vast syllabus and the vast things. ओके, सो ऊपर ऊपर से करो, पर ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें पढ़ो, डीप में मत पढ़ो, ठीक है। सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको जल्दी जल्दी करवाता हूँ। तो क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ताकि एक ड्रग का कितना सेफ है, वो कितना इफेक्टिव है, और स्टेबिलिटी फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे। साथ ही साथ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सके। फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान सके, और हम लोग डिस्कवरी प्रोसेस को डिटरमाइन कर सके अर्ली फेजेस में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, एक बार ये सब कुछ हो जाएगा तो क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए चला जाएगा। वो क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए वो जब चला जाएगा तो उसका हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज में आगे बताऊंगा वो क्या होता है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 होता है, ठीक है। फिर जब उसके बारे में पता चल जाएगा तो मेन चीज़ क्या है, वीवो एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन के बारे में हमें पढ़ना मेन होता है इसमें। तो मतलब मतलब वीवो वीवो मतलब क्या होता है, इन वीवो एंड इन विट्रो। वीवो मतलब होता है इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहा है क्या, अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं इस प्री फॉर्मुलेशन में। प्री फॉर्मुलेशन हम बना नहीं रहे हैं, बनाने से पहले का फेज है ये, ठीक है। उसका डिपोजिशन कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उन सब के बारे में हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं और इसकी रीडिंग नोट करते हैं। एक तरह से आप ये देख सकते हो। और अगर कुछ एरर है तो उसको चेंज करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन करा जाता है जब कोई भी हम नए ड्रग बना रहे हो। सो सफिशिएंट फार्माकोलॉजिकल प्रोमिसेस, ठीक है, इन एनिमल मॉडल टू वेरिएंट इवोल्यूशन द ह्यूमन, ठीक है। तो आने से पहले हम बहुत सारे टेस्ट जानवरों पे करते हैं, ठीक है। आरटीआई को और एनिमल वेलफेयर को कंसिडर करते हुए हम लोग बहुत सारे टेस्ट जानवरों पे करते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं ह्यूमन पे एवल्यूट करा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वो सेफ हो जाता है काफ़ी हद तक। और क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल हैजार्ड चेक करते हैं ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें, उसके बाद हम ह्यूमन के लिए अवेलेबल करवा सके वो ड्रग। उसके बाद बल्क लोड, ठीक है, इनिशियल बल्क लोड, किस तरह का हम लोग इनिशियल बल्क लोड उस पर डाल सके, लाइक क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट, पार्टिकल साइज रेंज क्या होगा उसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस तरह के परसेंटेज होंगे वोलेटाइल्स के, ठीक है। और कुछ एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हैं एवल्यूट करने के लिए, हम उसमें चेक करते हैं। सपोज HPTLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं ऐसे एवल्यूट करने के लिए। TLC मेथड भी यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक रूट्स, ठीक है। सिंथेटिक रूट मतलब हम लोग अलग अलग सिंथेटिक वे में रूट्स बनाए, ठीक है, लीवर किडनी सिंथेटिकली वे में बनाए, उस पर टेस्ट करें। प्रोबेबली डीके प्रोडक्ट्स कितना डिकेइंग टाइम होगा उसका, ये सब चेक करें। की रेट्स को भी हम चेक कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, लाइक बल्क स्केल अप, टॉक्सिलोजिकल स्टार्ट डेट क्या हो सकता है उसका, क्लिनिकल सप्लाई प्रिपरेशन, IND फाइलिंग, फेज 1 टेस्टिंग। तो ये सब हो गए आपके ड्रग डिस्कवरी में आ जाते हैं ये काइंड ऑफ की डेट्स, ठीक है। तो हर डेट्स को नोट करना पड़ता है कि कितने नोट, तभी तो कैसे पता लगा कि हमें 14 साल लगते हैं, ताकि की डेट्स को जब हम नोट करते हैं ना, तब उस पूरे रिकॉर्ड को देख के पता लगता है कि कम से कम 10 से 14 साल लग जाते हैं एक डिस्कवर्ड ड्रग को
डिस्कवर करना, टेस्ट करना, एवोल्यूशन करना, फिर मार्केट में उतारना, तो कम से कम 14 साल लग जाता है। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार, लाइक सोशल इश्यूज हो गया, रिलीजियस इशू हो गया, ये सब क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में। तो इंपॉर्टेंट नहीं था, हम आगे हेड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको याद भी नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लेफ्ट साइड है, आई होप ये समझ में आया हो आपको, ठीक है। उसके बाद उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान सके, ठीक है, ताकि फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें ये सब पता होगा, तो हमें हर बार बनाते वक्त कोई भी इश्यूज नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएंगे, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए फिजिकल और केमिकल स्टडीज हमें उसका पता होना चाहिए। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको करने का? सब फर्स्ट तो क्या है, उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर पाए, ठीक है, ताकि उसके हिसाब से हम सब कुछ सेट कर सके उसको बनाते वक्त। जैसे सपोज करो कि क्या यूटिलिटीज चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए, किस तरह का गैजेट चाहिए होगा, किस तरह का डिवाइसेस चाहिए होगा। सपोज करो कोई मेडिसिन है जो कॉपर में उसको बनाओगे तो टॉक्सिक हो जाएगा वो, तो अगर हमें उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होगा ऑलरेडी, तो हम लोग कॉपर यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। उसका काइनेटिक और स्टेबिलिटी पता कर सके हम लोग, ठीक है। काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक होता है जो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाता है। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। बॉडी अंदर जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है, कितना स्टेबल है वो कंपाउंड, बॉडी में जाके अनस्टेबल तो नहीं हो जाएगा। तो इस ये सब, और अगर स्टेबल है भी तो कितने साल तक वो स्टेबल रहेगा, ताकि उसको हम लोग कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, उसका कंसिडर कर पाए। कंपेटिबिलिटी चेक कर पाए उसका। कंपेटिबिलिटी क्या होता है कि अंदर जाके वो कितना कंपेटिबल है हमारे बॉडी के साथ, कहीं वो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देगा बाद में, इंटरेक्शन तो नहीं कर जाएगा बॉडी के साथ। और अगर वो कर भी रहा है इंटरेक्शन, वो अच्छा इंटरेक्शन कर रहा है, बुरा कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, या हमें जो चाहिए वर्स इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, इस तरह का चीजें। तो मेन गोल क्या है? मेन गोल है कि स्टेबल हमारा, कैसे हमारा कंपाउंड एक स्टेबल हो, सेफ रहे, और इफेक्टिव हम बढ़ा सके, और साथ ही साथ उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कैसे ज़्यादा कर पाए, ताकि वो ज़्यादा थेरेपेटिक एक्शन दे पाए। तो सिंपल सा ये है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यूज योर ब्रेन, बना के लिखो आप, ये 2 नंबर में उठ सकते हैं, कॉमन सेंस है। फिर कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प इन डिजाइनिंग, डिजाइन करने के लिए कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है इवोल्यूशन करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आई नो कि वैसे तो मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ, for my better understanding and for my revision purpose, but I will upload it into the YouTube because I don't want to waste it. Plus, yes, I had copied these notes, but I prepared it from myself, क्योंकि वो भी कहीं से नहीं बना रहे खुद से, उन्होंने भी बुक या रेफरेंस से देख के यूज़ करके है। बट आई अप्रिशिएट कि हम मुझे ईजिली अवेलेबल इन्होंने करवा दिया। तो 2 चैनल्स है, लाइक केयर ऑयल फार्मा एंड द डॉक्टर महेंद्र प्रताप, फ्रॉम विच आई कॉपीड देयर थिंग्स एंड आई प्रिपेयर्ड माई नोट्स। तो उसमें जो जो चीज़ मिसिंग लगी केयर ऑयल में, वो मैंने प्रताप से लिए हैं, महेंद्र प्रताप सर से। और दोनों ही ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, पर उनके नोट्स मुझे अरेंज नहीं लगते, तो दैट्स वाई आई अरेंज इट इन अ स्पेसिफिक वे, ताकि देखने में भी ईजी हो और हार्ड ना लगे, ठीक है। तो यस, आई कॉपीड, बट फॉर माई ओन नॉलेज पर्पज, ताकि मुझे गेन हो, ठीक है। तो यस, आई हैड कॉपीड दीज थिंग्स। तो किस तरह से एवोल्यूशन करने के लिए हम लोग डिजाइनिंग क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट, कंपाउंड आइडेंटिटी पता करें, उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, फार्मूला, और फार्मूले से ही हम मॉलिकुलर वेट को पता लगा सकते हैं। एंड थेरेपेटिक इंडिकेशंस लाइक प्रोबेबल ह्यूमन डोज, मतलब कि एक ह्यूमन के लिए कितना डोज होना चाहिए, और डिज़ायर्ड डोज क्या होना चाहिए, उसका बायो अवेलेबिलिटी मॉडल सेट कर सके, और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी उसके तैयार कर सके हम लोग, ठीक है। अब एक ड्रग को बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर ड्रग डिस्कवर होता है, ठीक है। बहुत साल लग जाते हैं, अलग अलग रिसर्चर लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है, जब ये डिस्कवर हो जाता है, फिर वो जाता है प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च सेंटर पे, मतलब एक डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ होती है, लाइक स्टेबिलिटी ऐसे वगैरह चेक होता है उसका। यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक हो गया, फिर जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो वापस वो MCP पे जाता है, मॉलिकुलर ऑप्टिमाइजेशन होता है वहाँ पे, कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये अप्रूवल हो जाता है तो इवोल्यूशन के लिए जाता है, और वहाँ पे सिलेक्शन होते हैं, 4-5 ड्रग होंगे, उनमें से कुछ 2-3 ड्रग होते हैं वो सिलेक्शन हो जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के बाद। उसके बाद वो चला जाता है फॉर्मुलेटिव रिक्वेस्ट के पास। जब वहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाता है तो वापस से वो फॉर्मुलेटिव डिपार्टमेंट में जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता करनी होती है, लाइक बल्क प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद जब यहाँ से ये सब कुछ चेक हो जाता है प्रोफाइल, तो वहाँ पे जाता है आपको फॉर्मुलेटिव डिपार्टमेंट में।
फॉर्मुलेटिव डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हो, फॉर्मुलेटिव डिपार्टमेंट में पहुंच गया। वहाँ पे आपका कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी चेक होगा, डिसोल्यूशन टेस्ट होगा, वायबिलिटी टेस्ट होगा, चेक होगा, फिक्स करा जाएगा, कोई एरर होगा। उसके बाद वहाँ से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके पास फेज 1 फॉर्मुलेशन में चला जाएगा। फेज 1 में IND डिपार्टमेंट होता है, बायोबिलिटी और स्केल अप करा जाता है उस चीज़ को। तो ये स्केल अप मतलब होता है बहुत सारे मात्रा में बनाना। जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, साथ ही साथ जब ये हो रहा होगा ना, साथ ही साथ ये प्रोसेस चल रहा होगा ताकि उसका यील्ड कैसे इंप्रूव करा जाए, अल्टरनेट रूट उसका चेक करा जाए, लाइक ओरल रूट में दे, और साथ ही साथ पेरेंटल सॉल्यूशन, जैसे पैरासिटामोल होता है ना, ओरल भी होता है, पेरेंटल भी होता है, तो वो सब यहाँ पे सब कुछ बन रहा होता है। फिर बल्क प्रोड्यूस कैसे करा जाए, सब कुछ रिसर्च चल रहा होगा। फिर अगर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे बल्क स्केल अप करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हमारा उस पर एनालिटिकल रिसर्च भी चल रहा होगा, मतलब एफिकेसी चेक करी जा रही होगी, जो तैयार हुआ है ड्रग वो एफिकेसी मतलब है, एफिकेसी है, मतलब सब कुछ है या नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू चेक करा जाएगा। फिर एनालिटिकल डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, बल्क क्लियरेंस मिलेगा, टॉक्सिन लेवल चेक होगा, ठीक है ना, लीथल डोज और इफेक्टिव डोज चेक करा जाएगा, फॉर्मुलेटिव ऐसे होगा, और IND फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी चेक करा जाएगा। उसके बाद हमारा बायोबिलिटी के ऊपर टेस्ट होगा, लाइक वीवो मॉडल, मतलब कि किसी विट्रो में भी टेस्ट करते जाते हैं, साथ ही साथ वीवो मॉडल पे, मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चेक करा जाएगा। साथ ही साथ टॉक्सिलेजो भी चेक करा जाएगा कि वो टॉक्सिसिटी एक्यूट है या क्रोनिक है, अगर है तो। उसके बाद ये सब यहाँ पे चला जाता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, IND के नाम से जानते हैं। यहाँ पे न्यू ड्रग के बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है। जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग फेज में पहुंच जाता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फेज होता है, फिर वहाँ पर भी एवोल्यूशन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद वो मार्केट में उतर जाता है। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो ये चार्ट भी आपको ईजी लगने लग जाएगा। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज देख के करते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक मतलब होता है कि ऑर्गन के थ्रू हम लोग उसको चेक कर पाएँ, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पता कर पाते हैं, और लाइक उसका कलर क्या, उसके कलर के बेसिस पे मतलब देख के, उसके ऑर्डर मतलब कि अपने स्मेल मतलब कि नोज को यूज़ करके, ठीक है ना, सेंस ऑर्गन को यूज़ करके, टेस्ट को यूज़ करके, उसका एसिडिक है, बेसिक है, बिटर है, क्या है, सोर है। उसके बाद उसका टेक्सचर देख के अपने स्किन के थ्रू फील कर पाए उसकी बनावट क्या है। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल फॉर्म 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। उसके बाद मोस्टली ज़्यादातर हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि बनाना आसान है, स्टेबल होता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और लंबी एक्सपायरी डेट होती है उसकी, ठीक है। एक्सपायरी डेट नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं, लीड डेट कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर अंदर की तरफ देखेंगे, अगर सॉलिड देख रहे हैं हम, तो उसका स्ट्रक्चर जब हम लोग काफ़ी जूमिंग करके देखते हैं तो आपको 2 तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, देखो क्रिस्टलाइन होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैटर्न में अरेंज होते हैं, पर एमोर्फस में पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है। अगर पानी का मेल्टिंग पॉइंट 100 है तो कहीं से भी पानी आप ले आओ, वहाँ पे आपको 100 डिग्री सेल्सियस देखने को ही मिलेगा। साथ ही उसका बॉइलिंग पॉइंट, लाइक बर्फ का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, आप कहीं से भी लेके आओगे पानी, उसको बर्फ जमाओगे, वहाँ पर भी आपको बॉइलिंग पॉइंट सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पानी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सॉलिड की यहाँ पे बात हो रही है, पर मैंने वाटर का एग्जांपल दे दिया ताकि आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ पाओ, ठीक है ना। उसका जो लैटिस होता है मैंने बता दिया, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होता है, डेफिनाइट इनडेफिनाइट लैटिस पैटर्न, ठीक है। कोई बड़ा कुछ छोटा हो सकता है, इरेगुलर मैनर में अटैच होता है, तो उसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रेंज वेरी करता रहता है। तो अगर कोई भी आप एमआरएफ चीज़ लेते हो तो आपने लिया, वो जिस मेल्टिंग पॉइंट में अभी कर रहा है बॉयल, वो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी सेम मेल्टिंग पॉइंट पे बॉयल करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब क्योंकि सब कुछ इसका अरेंज है, फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट एकदम शॉर्ट है, साथ ही साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही है, तो जो ये कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अरेंज ही नहीं अच्छे से तो स्टेबल ज़्यादा नहीं होते ये। अब जिसकी वजह से ये अरेंज ज़्यादा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और डिसोल्यूशन रेट भी कम होता है, पर ये इरेगुलर मैनर में, तो इसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी है वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका डिसोल्यूशन रेट भी है वो ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ आप देखा जाओगे, जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो मार्केट इफेक्ट करते हैं, सब्सटेंस हैज मार्केट इफेक्ट ऑन इट्स हार्डनेस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द डिफ्यूजन ऑन द स्टोरेज। स्टोर करते वक्त जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं वो बदल जाते हैं इज मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है ना। जब उसको स्टोर करके रखा जाओगे तो वो खुद ही अपने आप को रिवर्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा, और एक स्टेबल फॉर्म में अपने आप को ढाल लेगा। वो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक सपोज करो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो पेनिसिलिन जी है, ठीक है ना, पेनिसिलिन जी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करा जाता है, पोटेशियम इज मोर स्टेबल देन थेरापेटिक रिस्पॉन्स, मतलब जो इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है पेनिसिलिन जी का वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द एमोफस फॉर्म। अब कुछ पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया की बात करें तो ये दो नंबर में ही उठते हैं, तो उसको इतना डीप में मत पढ़ो, बस समझ लो। पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा डिसोल्यूशन रेट उतना ही घटेगा, ठीक है। मतलब कोई भी आप ले लो, एक चीनी ले लो, चीनी बहुत बड़े फॉर्म में ले लो, ठीक है ना, बहुत बड़े में, उसको पानी में डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको पिघलने में, ठीक है, डिजॉल्व होने में। पर चीनी को आप टुकड़े टुकड़े, जो मार्केट में चीनी आते हैं छोटे छोटे, उसको डालोगे पानी में तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो जितना ही छोटा होगा उतना ही उसका डायमेंशन ज़्यादा होगा, चाहे किसी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका उतनी ही जल्दी वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना कम साइज होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल की सस्पेक्टेबल होते हैं टू अटैक द हीट, ठीक है ना, हीट के द्वारा ये जल्दी से हार्म हो जाते हैं,
एटमॉस्फेयर के द्वारा भी, लाइट के द्वारा भी, ह्यूमिडिटी के द्वारा भी, स्टेबिलिटी में कुछ इश्यूज भी आ सकती है इसकी, अगर ये सब पड़ा होगा। सस्पेक्टेबल को आप सेंसिटिव भी समझ सकते हो, ये लोग इन चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके हल्का सा कॉन्टेक्ट पे आते ही इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है। और इन बल्क फॉर्म एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द साइज ऑल्सो अफेक्ट द सरफेस एरिया। अगर बल्क फॉर्म है और अगर वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी के द्वारा, सीविंग मेथड के द्वारा, ठीक है ना, छलनी होता है ना सीविंग मेथड, लाइट स्कैटर, ठीक है, मेथड के द्वारा। और आपने देखा होगा स्केटरिंग वाला एक फॉर्मूला था, उसको मेरे को भी याद तो नहीं आ रहा, पर उसमें टॉर्च जलाते थे, तो स्केटरिंग ही तो है जहाँ तक मुझे याद है, स्केटरिंग वाला फॉर्मूला भी था। अब हमारे सिलेबस में पार्टिकल शेप के बारे ज़्यादा तो दे नहीं रखा है, पर हाँ कहीं ना कहीं पार्टिकल शेप भी मेल्टिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, पर इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो बस एज अ नॉलेज मैं आपको बता रहा था। अब मेन जो पार्टिकल शेप है वो किस चीज़ में अफेक्ट करते हैं, वो आपके इफेक्ट करते हैं आपके फ्लोइंग प्रॉपर्टी पे। तो सपोज करो एक सर्कल है और एक क्रिस्टल फॉर्म में है जो स्क्वायर फॉर्म में क्रिस्टल, ठीक है, तो जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगी वो सर्कल की ज़्यादा होगी, क्योंकि सर्कल रिवॉल्व कर पाते हैं ना, घूम पाते हैं अच्छे से, तो उनकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। तो बस ज़्यादा इसमें ये नहीं बता रखा है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी को ये लोग डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया मैंने पीछे भी बता रखा, तो यहाँ भी बता रहा हूँ। जो सरफेस एरिया है अगर उसको हम लोग क्लोजली पैक करेंगे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, पर उसको जब लॉन्गिट्यूडिनल वे में खोल देंगे, उसको डिस्पैच कर देंगे, मतलब कि उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया करता क्या है, एरिया मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्टिकल, मतलब जितना भी उसकी ऊपर वाली सतह हमें देखने को मिलती है उसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। और इसको हम लोग किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, बीईटी के द्वारा, ठीक है ना। बीईटी एक थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। जितना जैसे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपने कलरफुल लिक्विड है उसके ऊपर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लिक्विड है इस पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब लिक्विड जो है, जैसे मान लो आपने एग्जांपल दे रहा हूँ 20 ड्रॉप लिक्विड फेंका इस पे, तो सारे 20 ड्रॉप यहाँ पे आपको जमा देखने को मिल गए इसके सरफेस पे, ठीक है। तो सारे 20 के 20 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, पर यहाँ पे फेंकोगे तो सिर्फ मुश्किल से 10 ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे, जिससे कि हमें पता लगता है कि इसके पास एरिया ज्यादा था, जिसकी वजह से काफी हद तक लिक्विड इनके सरफेस पे अटैच देखने को आपको मिला। अब स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ स्टडी करा जाएगा जो हमारे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और पेपर में भी होता है। इसमें हमें चार चीज पढ़ते हैं बेसिकली। फर्स्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑन द बल्क कैरेक्टराइजेशन, पहला तो ये पढ़ना है। इसके अंदर हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन एमोर्फस जो हमने पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है वो सराउंडिंग से कोई भी एक सब्सटेंस, ठीक है। पार्टिकल्स के कैरेक्टराइजेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। थर्मल इफेक्ट्स पढ़ने हैं, पाउडर के फ्लोइंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। दूसरा है हमारा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस जो कि उठता है 5 नंबर में। इसके अंदर आपको पढ़ना है, हमने 4th यूनिट में पढ़ रखा है, हिप्पो डॉलर कैशबैक के नाम से भी आप जान सकते हो, HIPPO, डॉलर मतलब एस और CB, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो इनको। एच मतलब होता है हाइड्रोजन स्टडी, और एक और चीज आप इसको कर सकते हो पीएच मतलब कि हाइड्रोजन सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, ठीक है ना। HI से मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट, P मतलब पार्टिकल कोफिशिएंट, ठीक है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट, और P से पार्टिकल साइज भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। HIPPO, O से आप क्या याद कर सकते हो, O से था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी, S मतलब डॉलर, डॉलर मतलब S मतलब सॉल्युलाइजेशन, कैशबैक मतलब CB, ठीक है, कैशबैक मतलब CB, C से मतलब कॉमन आयन इफेक्ट, और B से आपका हो जाएगा आपका बॉइलिंग प्रॉपर्टीज एंड आपका एक आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक था बायो अवेलेबिलिटी करके, उन सब के बारे में पता चलता है हमारा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में। फिलहाल उसमें इतना सारा तो है नहीं, हिप्पो डॉलर कैशबैक जो मिनोमिनिक है इतना सारा है नहीं, सिर्फ 2 4 2 6 भी करोगे तो आप चल जाएगा, ठीक है। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा सेमेस्टर 4th यूनिट फर्स्ट में था, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन एंड द रेसिमराइजेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी पेपर में उठ सकता है आपके 5 नंबर पे, और हो सकता है ये दोनों में उठ जाए आपके 10 नंबर पे। फिर कुछ हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सॉलिड सॉलिड स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन फेज स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और कंपेटेबिलिटी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सा बता दूं, सॉलिड स्टेट मतलब होता है आपका जो भी ओरल ड्रग होते हैं, लाइक पैरासिटामोल का सॉलिड डोज। सॉल्यूशन फेज में कोई इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बना सकते हैं हम उसको, तो उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। और कंपेटिबिलिटी में जो होता है आपके जो भी कंप्रेस्ड वाली चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें बहुत ही कॉमन सी चीजें, तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसको ज्यादा पढ़ना नहीं आप पड़ेगा, आपको बस समझना है। आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन इन द बर्ड ड्रग फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ड्रग कैन बी यूज्ड एज सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है कि ज्यादा मात्रा में ये यूज होता है सॉलिड, बिकॉज ईज ऑफ द प्रिपरेशन, इसको बनाना आसान है, इसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। और द वेरियस फिजिकल द ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स आर, कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। उसके जो फर्स्ट क्रिस्टलिनिटी एंड द पॉलीमॉर्फिज्म, सॉलिड ड्रग्स में अगर एज 2 तरह के फॉर्म में हो सकते हैं, एमोर्फस या फिर क्रिस्टलाइन। जो एमोर्फस होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, पर जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने बताया था क्योंकि वो अरेंज होते हैं स्पेसिफिक यूनिफॉर्म मैनर में, इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। अमरफस हो या क्रिस्टलाइन हो, हैव द ग्रेटर इंपॉर्ट, दोनों का ही अपने अपने जगह पे ग्रेटर रोल निभाते हैं वो लोग। फर्स्ट ये लोग, इनको ईज ऑफ फॉर्मुलेशन एंड हैंडलिंग करना ईजी होता है, ये केमिकली स्टेबल होते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो
इनका खास ध्यान रखना पड़ता है। तो पेपर में उठ के आता है 2 नंबर में या 5 नंबर में, डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन, इसलिए इसको दोनों को एक साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट में भी लिख सको और साथ ही साथ डेफिनेशन भी आप बना के लिख सको। तो व्हाट इज एमॉर्फस, तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया, पर यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन जैसा बना रखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। द ड्रग विच इज रैंडमली अरेंज मॉलिक्यूल एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनके जो एटम या मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली अरेंज हो, कहीं पे कुछ भी हो, ठीक है ना, कहीं पे कुछ भी अरेंज हो, उसे हम लोग कहते हैं एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन में इसका अपोजिट होता है, एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न पे ये लोग अरेंज होते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल इसके मैं नीचे बता दूंगा अभी। और फिर क्या है, फिर एडवांटेज क्या है, इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो हाई होता है और डिसोल्यूशन रेट भी हाई होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही टाइम लगता है इनको हाई होता है। साथ ही साथ जो ये क्रिस्टलाइन है उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, बस ये याद रख लेना आप, स्टेबल है तो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती है हमारे पास की, ये लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल है। स्टोर करने पर वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, आपने किस फॉर्म में उसको प्रिपेयर करा है कोई मैटर नहीं करता है, जैसे ये लोग अपनी कंडीशन में रखे होंगे वो लोग कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से दिस इनस्टेबिलिटी अकर ड्यूरिंग द बल्क प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है डोजेस फॉर्म में, इसलिए इसको लेस स्टेबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी है तो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के साथ इसको तैयार करो पेनिसिलिन जी को, ये लोग मोर स्टेबल होंगे इन रिगार्डिंग, मतलब इन कंपैरिजन टू द एमोफस फॉर्म। तो यही था। अब कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं एमोफस एंड द क्रिस्टलाइन के बीच में। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली वे में आप कर सकते हो, आज जैसे कि पता है इरेगुलर पैटर्न होता है इनका, इनका जो ऑर्डर होता है वो अरेंज होता है इन अ डेफिनाइट पैटर्न, और ये सिमेट्रिकली, ये लोग सिमेट्रिकल नहीं होते, हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं होते। सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि होता है ना डिवाइड कर सकते हैं इसको, कहीं भी बीच में आपने एक लाइन खींच दिया तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, पर हमारे पास में नहीं देखने को मिलेगा ये। पर क्रिस्टलाइन में एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब कि अगर आप एक लाइन भी खींच रहे हो ना तो एक सिमेट्रिकल वे में डिवाइड होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो यहाँ देख सकते हो ऊपर जितना है वो यहाँ पे, जितना नीचे वहाँ यहाँ पे भी सेम अमाउंट पे, तो इनकी सिमेट्रिकल एक्सेस फिक्स होता है, इनका सेंटर होता है, प्लेन ऑफ एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, तो एकदम स्पेसिफिकल मैनर में। तो आप ये कह सकते हो ये लोग जो है वो लोग एक मिडिल क्लास है और ये एक हायर क्लास है, इनके पास एक मैनर है, कैसे खाते हैं कैसे पहनते हैं, पर ये लोग अपने मनमर्जी के मुताबिक है। तो प्रॉपर्टीज होता है, ये लोग आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी तो मैं एक बार में नहीं बता सकता, पर एक एग्जांपल ले सकते हो आप। बट एक एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, कहीं पर भी एक रैंडम लाइन खींचा, तो एमोफस के फेज में, एमोफस के केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो दो दो कलर के बॉल्स है, तो यहाँ पे अगर रेड है और नीचे ब्लू है तो अगले पैटर्न में भी रेड ब्लू के ही, सॉरी सॉरी उल्टा कह रहा हूँ मैं, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में ऐसा होता है, एक लाइन खींचा अगर ऊपर रेड है नीचे ब्लू है तो यही पैटर्न वो फॉलो करता जाएगा, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना, एन आइसोट्रॉपिक। पर जो एमोफस का केस होता है यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर रेड ब्लू यहाँ पे कर रखा है तो रेड ब्लू ही पैटर्न फॉलो करेगा, अगर रेड ब्लू है तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा से ब्लू 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 फिर रेड आ जाए, ठीक है। तो एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहो कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है तो ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो कोई भी पैटर्न नहीं होता इनमें, जिसके वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डिफ्यूज होती है, पर इसकी होती है शार्प, मतलब फिक्स होती है। ये सॉफ्ट होते हैं देखने में पर हार्ड एंड रिजिड होते हैं, ठीक है। अब दे हैव दे डोंट हैव रेगुलर क्रिस्टल फॉर्म, इनका कोई भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता है रेगुलर वे में, और पर इनका होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि रोम्बस हेड टेट्राहेड्रल इसके क्रिस्टल बनेंगे लैब में, आपने देखा होगा, आपके केमिस्ट्री टीचर्स कहेंगे कि इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो रोम्बो या टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल ऐसा कुछ बनेगा, तो वो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर इनका कोई भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इनको जब भी नाइफ से काटा जाता है तो इनका ये लोग शार्प एज नहीं देते, लाइक आप साबुन को काटना, कभी साबुन को एक नाइफ से काटना कितना प्यारा फॉर्म में कटेगा, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा नहीं करते। पर जो नाइफ से अगर इसको काटा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, वो एकदम एकदम शार्प एंड स्मूथ सरफेस बना के देंगे आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ द एमोफस सॉलिड्स आर लाइक रबर, रबर, प्लास्टिक एंड द ग्लास, ठीक है। पर क्रिस्टलाइन के एग्जांपल की बात करो तो क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl, ZnS, जिंक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। पर एक और एक अजीब सा चीज है, जो ग्लास है ना, ग्लास पहले क्वार्ट्ज के फॉर्म में होता है, क्वार्ट्ज को जब हम लोग करते हैं ना कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं तब जाके वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन कमेंट डाउन एंड करेक्ट मी, ओके, क्योंकि ट्वेल्थ में मैंने जहाँ तक पढ़ा था क्वार्ट से ही क्लास बनते हैं। तो दिस इज व्हाट द एमोफस एंड द क्रिस्टलाइंस आर। लेट्स हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मतलब कि आप समझ सकते हो बहुत सारे चेहरे, पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ मतलब चेहरा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइन एज मोर एज वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज, एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म को में बहुत सारे चेहरे वो ले ले, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो विद डिफरेंट इंटरनल लैटाइस, ठीक है, इंटरनल लैटाइस मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन पैकिंग अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है और केमिकली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक है, केमिकली आइडेंटिकल भी हो सकते हैं पर उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट वे में हो सकता है। तो इट डिपेंड करता है वो तीन चीजों में, उसको किस टेम्परेचर पे रखा गया है, उसकी सॉल्वेंट क्या, किस सॉल्वेंट में उसको तैयार करा गया और किस टाइम पे और कितने टाइम पे उसको एब्जॉर्ब करा जा रहा है। तो केमिकल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी चेंज क्यों होता है, ये ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक की वजह से।
तो यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कहाँ कहाँ ये इम्पैक्ट डालता है पॉलीमॉर्फिज्म। कई केसेस में अच्छा भी है, कई केसेस में ये बेकार भी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे यूज करें। तो इम्पैक्ट रूल्स का देखने को मिलता है, बायोएबिलिटी यहाँ की यहाँ इसकी चेंज हो सकती है, और साथ ही साथ वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सेटिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी क्राइटेरिया क्या है जब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम लोग आगे प्रोसीजर में बढ़ते हैं, अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वहीं पे उसको रोक दिया जाता है और फिर से डेवलप करा जाता है, ठीक है। तो ये देखने में हो सकता है कि हार्ड लगे, पर बहुत ही ईजी है ये। सपोज करो कि पहले क्या होगा, उसका स्क्रीनिंग करा जाएगा। अगर स्क्रीन हो गया तो कैन डिफरेंट पॉलीमॉर्फ बी फॉर्म, तो हम लोग बहुत सारे पॉलीमॉर्फ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे वो पास नहीं हो पाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर अगर पास हो जाता है तो फिर उसका देखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाएगा, उसका तैयार करा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। डज द फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिर देखा जाएगा क्या इसका अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम कोई भी आगे टेस्ट नहीं करेंगे, पर अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर देखने को मिल रहा है तो इस ड्रग सेफ, क्या ड्रग सेफ है, इफेक्टिव है, और उसके परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, ये चेक करा जाएगा। अगर यस कर रहा है तो सेल्फ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर पॉलीमॉर्फ करा जाएगा, ठीक है ना, किस तरह से एक्सेप्ट करा जाएगा उस चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद डज ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्म्स टेस्टिंग प्रोवाइड एडिक्वेट कंट्रोल, ठीक है, क्या वो प्रोवाइड करवा पा रहा है एडिक्वेट कंट्रोल। अगर करवा पा रहा है तो उसको हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में एस्टेब्लिश कर देते हैं। अगर नहीं करवा पा रहा है तो वो चला जाता है, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग भेज देते हैं। मॉनिटर पॉलीमॉर्फ फॉर्म ड्यूरिंग स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, मॉनिटर एक पॉलीमॉर्फ चेक बनाया जाता है। डज अ चेंज अकर्स विच कोड इफेक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी, जब उसको बनाया जाता है फिर उसको जब धीरे धीरे चेक करा जाता है टाइम टू टाइम, तो देखा जाता है क्या वो कुछ इफेक्ट कर रहा है उसकी सेफ्टी पे या एफिकेसी पे। अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा होगा तो हमें कोई भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉलीमॉर्फ चेंज इन द ड्यूरिंग प्रोडक्ट बनाते वक्त। पर अगर कर रहा होगा तो उसको क्या करवा देंगे हम लोग, एस्टेब्लाइज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच आर कंसिस्टेंट विद द सेफ्टी एंड द एफिकेसी। तो ऐसे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या था, सपोज करो कि कोई ड्रग है, उस पर वो जो ड्रग है हम उसको पॉलीमॉर्फ वे में ही आपको बनाना ही है, तो उसमें उसमें हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं यहाँ पे। फिर आता है एनालिस कैसे कर सकते हैं इनको हम लोग एनालिस कर सकते हैं थर्मल एनालिसिस से। तो फर्स्ट है आपका डीएससी क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री या फिर डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डीटीए के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात देख सकते हैं, कैलोरी, कैलोरी मतलब हीट, काइंड ऑफ हीट, थर्मल मतलब भी हीट, पर कैलोरी मतलब जहाँ पे फैट रिलेटेड होता है कैलोरी वहाँ पे यूज होता है कैलोरीमेट्री, और थर्मल में हीट, ठीक है ना। तो मीजर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है हीट लॉस या गेन करवाया जाएगा, जिसके वजह से ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। दूसरा आता है टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे क्या चेंज करने को मिलेगा, वेट वेरिएशन चेक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब वेट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है टाइम पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे इंटरलिंक्ड होते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब डिटेल में नहीं है पर लिखना पड़ता है 5 नंबर पे। तो एक टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, डीटीए मतलब थर्मल वे पे, और एक जीए मतलब कि ग्रेविमेट्रिक वे में, ठीक है ना। यूजेस क्या है इसका, ताकि हम उसकी प्योरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्वेशन, डिग्रेडेशन एंड द एक्सीपिएंट कंपेबिलिटी को चेक कर सके। दूसरा इन्वेस्टिगेट कर सके और प्रिडिक्ट कर सके, ई आएगा आई नहीं आएगा, PREDICT, प्रिडिक्ट कर सके उसके फिजियो केमिकल इंटरेक्शन को बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है ना। फिर आता है यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ केमिकली कंपेटेबल एक्सिपिएंट्स को हम लोग चेक कर पाए कि कौन सा अच्छा है एज अ सॉल्वेंट या फिर एक्सिपिएंट्स। एक्स रे डिफ्रैक्शंस भी यूज करे जा सकते हैं थर्मल एनालिसिस के लिए। जैसे कि क्या चेक करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द एस्टेबलाइजिंग बैचेस टू बैचेस रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब हर बैच में सेम तरह का क्रिस्टल रिप्रोड्यूस हो, उसके लिए हम लोग एक्स रे डिफरेंशिएशन भी चेक कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर दूसरा ये इसी के अंदर ही है आपका, एक सेकंड में दिखा दो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी के अंदर ही है दूसरा, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड बल्क कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही है दूसरा, फ्लो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, पाउडर प्रॉपर्टीज हैव इफेक्टेड बाय, किन चीज़ों के द्वारा ये इफेक्ट हो सकता है, पार्टिकल के साइज से, डेंसिटी से, शेप से, और उसके एब्जॉर्ब मॉइस्चर से, कितना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो सकती है। The powder flow property can be characterized by angle and repose and the compressibility, यही दो मेन है, बाकी ऊपर भी दे रखा है, उसको भी आप डिफाइन करके लिख सकते हो, पर मेन है एंगल ऑफ रिपोज एंड द कंप्रेसिबिलिटी, इससे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सपोज आप एक वेल डिस्टिंक्ट एरिया, मतलब एक वेल डिस्टिंक्ट हाइट से पाउडर्स को फेंका जाता है, ठीक है, फेंका गया, वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होगी और कुछ इस तरह का क्रस्ट फॉर्म कर लेगी, ठीक है, क्रस्ट कह लो, पहाड़ कह लो, जो कह लो, इस तरह का कुछ फ्लो कर लेगी, रेडी, ठीक है। इस वे में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे सीमेंट देखा होगा आपने, इस वे में इकट्ठा हो जाएगी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें एंगल देखा जाता है, एंगल क्या होता है जैसे कि मैं बता दूं,
इसी ये तैयार हो गया था। तो इसमें है ना, इस चीज़ को कहते हैं एंगल, इस चीज़ को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम लोग करते हैं टेन थीटा के नाम से। टेन थीटा कैसे आया इसको आप नेट पे चेक कर सकते हो, मुझे पता है, पर जब बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आपने साइन कॉस टेन पढ़ा है तो पता लग जाएगा टेन थीटा क्यों आया है, क्योंकि हम इस चीज़ों को ले रहे हैं, क्योंकि हाइट और रेडियस को लेते हैं ना, जिसकी वजह से ये टेन थीटा हो जाता है। टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है एच बाई आर, ठीक है, इसलिए हम लोग टेन थीटा ले रहे हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एच डिवाइड बाई आर। एच मतलब होता है हाइट ऑफ द जो भी है ये पाउडर, ठीक है ना, क्या कहते हैं पहाड़ को, जो भी कहते हैं क्रस्ट कह लो, द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द रेडियस ऑफ द क्रस्ट, की कितना रेडियस है, ये पूरा डायमीटर होता है, हाफ होता है रेडियस, इसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाँ ये लिया जाता है, यहाँ पे बता रखा है रेडियस एंड द हाइट, और जिसको हम लोग एच को लिख सकते हैं टू एच, और अगर अगर हम लोग आर को डी लिख रहे हैं तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, वरना फॉर्मूला यूज होगा एच बाई आर। तो अगर एंगल ऑफ रिपोज 20 से कम आ रहा है तो उसका जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छा है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, पहले तो मैं बता दूं। एक सपोज करो आप एक टेस्ट ले रहे हो बच्चों का, ठीक है, अगर 50 में से 50 नंबर आता है उसको आप क्या दोगे? एक्सीलेंट दोगे। फिर अगर थोड़ा कम नंबर आता है उसको आप गुड दोगे। फिर अगर 25 नंबर आ रहा है तो उसको बोलोगे तुम बस पास हो। और अगर वो फेल हो जाता है उसको हम लोग पुअर देते हैं ना, पुअर लिखते हैं, पुअर परफॉर्मेंस, वैसे याद कर सकते हो आप। तो अगर 20 से ज़्यादा है नंबर किसी बच्चे के तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी है, मतलब 20 से कम है, सॉरी 20 से कम है, इसमें उल्टा है ना, फ्लोइंग प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा पता चल पा रहा है। तो 20 से कम है तो एक्सीलेंट हो गया आप उसको, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसके इस केस में। या अगर आपको ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो शरारत के दिए गए हैं, जिसने ज़्यादा शरारत करी है उसके ज़्यादा मार्क्स दिए गए, जिसने कम शरारत की है उसके कम मार्क्स दिए गए, तो कम मार्क्स वाला ही तो विनर हुआ। तो सपोज करो 20 से कम है तो एक्सीलेंट फ्लो है उसका, और अगर 10 नंबर और ऊपर ऊपर है 20 से 30 के बीच में तो उसको आप गुड बोलोगे, गुड बच्चा है ये, कोई बात नहीं, जब थोड़ा कम ही शरारत करता है। फिर अगर 30 से 35 आता है तो पास है वो काइंड ऑफ, पर अगर वो 40 से ज़्यादा है उसके मार्क्स तो पूरा फ्लो प्रॉपर्टीज है उसका, ठीक है। अब कंपेसिबिलिटी क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको फॉर्मूला का एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका डेफिनेशन आप आधे पेज में बना के लिख सकते हो पेपर में, पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना मैंने उसे, और मैंने ये डॉक्टर प्रताप सर से लिया है तो बेसिकली उस मूड में था ही नहीं। तो दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं, कार्न्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉसनर रेशियो। इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, कार में हॉसनर ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी याद। तो कार्स और हॉसनर क्या करते हैं, कार्स इंडेक्स बताता है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो टैप डेंसिटी क्या होता है, तो उसके लिए पहले टैप वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए आपको, और बल्क वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। टैप वॉल्यूम क्या होता है, जब आप उसको टैप कर देते हो, सपोज करो कि आपने एक बीकर में लिया है, सैंड लिया है, ठीक है, सैंड ले लिया, सैंड ले लो, बेंटोनाइट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, मुल्तानी मिट्टी ले लो। अब ले लिया मेजरिंग सिलेंडर में, उस वक्त जितना वॉल्यूम होगा उसको हम लोग कहेंगे बल्क वॉल्यूम, और जब उसका डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालेंगे तो बल्क डेंसिटी निकल के आएगा, जो कि कम होता है मेजर केसेस में, क्योंकि वो बल्क में, और जब बल्क वाले को डिवाइड करोगे तो आंसर आपको कम ला के देगा, ठीक है। पर टैप डेंसिटी क्या होता है, टैप डेंसिटी मतलब हो गया बेंटोनाइट आपने लिया, अब उस केस में उसको पहले टैप करो, ठीक है, टैप कर लिया। टैप करने के बाद मतलब कि कोई भी सरफेस में उसको टैप करो, टैप मतलब होता है उसको कहते हैं ना कि उसको 3-4 बार हिट करो सरफेस से धीरे धीरे। अब जब टैप करोगे ना आप, तो ये जो था ना मिक्सिंग सेंटर, मान लो बेंटोनाइट इतना भरा हुआ था, टैप करने के बाद मतलब कि पटकने के बाद, तो वो यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे इतने दूर तक। तो ये सपोज करो कि पहले इतना था और टैप करने के बाद इतना चला गया, तो अब इसको कहेंगे हम लोग टैप्ड वॉल्यूम। और जब टैप्ड वॉल्यूम अपन में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका टैप डेंसिटी कम ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको डिवाइड जब हो रहा होगा ना, ये देखने में कम है पर उसका जो रिजल्ट आ रहा होगा नंबर इन नंबर्स वो ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी। तो इसका फॉर्मुला होता है कार इंडेक्स का, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में टेन डेंसिटी इंटू 100, क्योंकि इसका परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो इस केस में अगर जो उसका परसेंट निकल के आ रहा है इंडेक्स का 5 से 15 है तो वो एक्सीलेंट माना जाता है। अब यहाँ पे 10-10 का गैप आ रहा है मेजरली, ठीक है ना, 10-10 का कह लो या फिर कुछ भी कह लो, 5-5 का कह लो। अगर 5 से 15 है तो वो एक्सीलेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर 12 से 16 है इन द केस मतलब समझ लो तो गुड माना जाएगा। 18 से 21 से तो फेयर माना जाएगा। 23 से 35 से तो पुअर माना जाएगा। 33 से 38 से तो वेरी पुअर, और 40 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली पुअर। तो आपको पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 5 और 40 याद करो, ठीक है। और इन्हीं के बीच में आपको लिखना है नंबर्स, ठीक है ना, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। तो दो दो सिचुएशन में है गुड, ठीक है, दो सिचुएशन में बैड, और बीच में है फेयर और पुअर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। हॉस्टल इंडेक्स क्या होता है, रेशियो कहते हैं बेसिकली, इसको इंडेक्स नहीं कहते हैं। हॉस्टल रेशियो होता है रेशियो बिटवीन टैप डेंसिटी एंड द बल्क डेंसिटी, इसको रेशियो कहते हैं, डिवाइड ही हो रहा है बेसिकली। तो टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आता है 1.25 से स्टार्ट होता है, 1.15 पे खत्म हो जाते हैं, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। 1.2 से लेके 1.5 तक में खत्म हो जाते हैं। तो अगर इससे कम है तो गुड है, ज़्यादा है तो पुअर है फ्लो, और इन बिटवीन है तो ग्लाइडेंट एडिशन, मतलब हमें ग्लाइडेंट उसमें मिलाने की जरूरत है, क्योंकि ग्लाइडेंट मिलाएंगे तब उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। पर अगर 1.5 से ज़्यादा है तो ग्लाइडेंट भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आप उसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये हमने ये बेसिकली सेमेस्टर थर्ड में ही पढ़ा था हमने, ठीक है। क्या नाम था उसका,
माइक्रोमेलेटिक्स चैप्टर्स में, और किसी किसी में सेमेस्टर 4 में भी है, पर हमारा सेमेस्टर 3 में भी उठा था, 4 में भी उठा था, इसलिए मुझे याद है। अब सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करेंगे हम लोग। अब आप कहोगे ये क्या है, ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं पीछे चला जाऊँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, टॉपिक देखो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। अब हम इसको करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस है क्या? यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स चेक करते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस का। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ड्रग का, जो कि क्या इफेक्ट करता है, उसके रेट ऑफ रिलीज मतलब कि डिसोल्यूशन को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसके थेरेपेटिक एफिकेसी को भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। नॉलेज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों? ड्यूरिंग इंजेक्शन बनाते वक्त डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड, क्योंकि हमें डायरेक्ट ब्लड में डालना है ना, इसलिए वो जो कंपाउंड है वो कितना सॉल्युबिलिटी है, किस पैरामीटर में खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, तो ये सब चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर कंडक्टिंग लाइक फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिलॉजिकल और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में इन सब करते वक्त ड्रग सॉल्यूशन इज प्रिफर्ड, बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग एज पर यूएसपी, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अगर 1 से कम है, मतलब पहले समझो ये क्या है, पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड 1 पार्ट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग क्या होता है, अगर इसको भी कोई पूछ लेना क्या होता है, तो ये मत पूछ लेना इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ऐसे ये बोलोगे ठीक है, काइंड ऑफ ठीक है, नियर बाय। पर अगर एक लीगल वे में पूछा जाए एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो एक हिंदी में बताता हूँ। 250 ml पानी या कोई भी सॉल्वेंट ले लो, 250 ml, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट मिलाओगे, ठीक है, तो वो अगर हो रहा है कि किस तरह से वो डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी चेक करना। इतना याद रखना, हम लोग जो चेक कर रहे हैं सॉल्यूट को, वो 250 ml में कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस का। तो अगर लेस देन 1 आता है, ठीक है ना, मतलब एक पार्ट सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में कितना मेहनत लग रहा है, उसके हिसाब से नंबरिंग मिलती है, ठीक है। अगर वो नंबरिंग आई लेस देन 1, तो वेरी सॉल्यूबल है, ठीक है। अगर वो नंबर आया 1 से 10 के बीच में, तो फ्रीली सॉल्यूबल है, मतलब कि फ्रीली हो जाता है। अगर वो नंबर आया 10 से 30 के बीच में, तो वो है सॉल्यूबल माना जाता है उस कंपाउंड को। अगर वो 10 से 100 के बीच में आया, तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, मतलब स्पेरिंगली, कुछ पार्ट हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो 100 से 1000 के बीच में आया, तो वो स्लाइटली सॉल्यूबल है, थोड़ा सा सॉल्यूबल है। अगर वो 1000 से 10,000 के बीच में आया, तो स्लाइटली, वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल है। अगर वो 1000 से ज़्यादा आता है, तो इनसॉल्यूबल है या फिर पार्शली सॉल्यूशन है वो, ठीक है, ये मान जाता है, इसको रखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी स्टडी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पीके डिटर्मिनेशन, ठीक है, पावर ऑफ पीएच कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग इसको, पीके को। पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, सॉल्युलाइजेशन पढ़ेंगे, पार्टीशन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। सेमेस्टर 4 हमने पढ़ रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, पर बेसिकली जितना एक टॉपिक को समझने के लिए नीड है, उतना ही इस पे लिखा पड़ा है। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना नेसेसरी है, तो आप वहाँ पे लिख लेना एग्जाम पे, अकॉर्डिंग टू योर फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन योर बॉडी, वो बता दूंगा कैसे लिखना है। फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी स्टडी में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पीके डिटर्मिनेशन। पीके क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस एसोसिएशन कांस्टेंट विद इन 1 to 10 pH रेंज। सपोज करो कोई भी कंपाउंड है, सॉल्वेंट है, वो रेंज है इसका 1 to 10, तो इसमें क्या बताता है? इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन एंड द एब्जॉर्प्शन, दो चीज़ों के बारे में बात करता है यहाँ पे, कि वो डिसॉल्व कैसा होगा, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ों के बारे में बात होती है। तो एक मतलब एंडरसन हैजलबैक इक्वेशन है, जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं पीके को। तो सिंपल सी वही है, आप कोई भी ले लो, पीओएच ले लो, पीएच ले लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन ले लो, उसका फॉर्मूला होता है पीके, मतलब पावर ऑफ डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट होता है ये, और साथ ही साथ लॉग आयनाइज अपन में अनआयनाइज्ड, ये होता है बेसिक के लिए। एसिडिक के लिए क्या होता है? सेम चीज़ वही होता है, बस आयनाइज का आयनाइज हो जाता है और अनआयनाइज का आयनाइज्ड ड्रग हो जाता है, ठीक है। अब किस चीज़ तरीकों से हम इसको चेक कर सकते हैं, मतलब वे क्या है, कौन कौन से गैजेट्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, तो उसके नाम है यूवी या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्री, ठीक है, इन सब तकनीकों के द्वारा हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी मेथड और कंडक्टोमेट्री मेथड के द्वारा भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल फॉर्म हो गया ये, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म हो गया, और ये हो गया एक गैजेट के थ्रू। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल एंड द कॉमन आयन इफेक्ट। पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होगा? द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड एंड द बेस ड्रग डिपेंड करता है वो उसके आयनाइजिंग फंक्शनल ग्रुप पे, कि फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है। अगर उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो डिसॉल्वेबल होगा, और नहीं होगा उसमें तो अनडिसॉल्वेबल होगा वो। तो दो तरह की चीज फॉर्म में पाए जाते हैं कोई भी ड्रग, आयनाइज फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म, और दोनों ही फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं पेट में, मतलब डायरेक्ट गल्प कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आयनाइज फॉर्म में, सॉरी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। पर जब वो पेट में जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट के बाद वो आयनाइज्ड फॉर्म से आयनाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं। अब वो आयनाइज्ड फॉर्म हो गया है, आयनाइज्ड फॉर्म हमेशा पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे पेट में वो जाकर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग ब्लड में जाएंगे, तो वापस से पहले उन्हें आयनाइज्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा, ताकि वो ब्लड ब्लड अब देखो, ब्लड में जाने के लिए उसे बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा आपके स्टमक के वॉल का,
ठीक है, स्टमक के वॉल का और ब्लड वेसल का, इसलिए लिपोफिलिक जरूरी है, क्योंकि लिपोफिलिक ही एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, लिपोफिलिक मतलब आयनाइज्ड फॉर्म। अब आयनाइज्ड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, अब ब्लड में जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो वहाँ पे अनायनाइज्ड फॉर्म में बटेगा या नहीं बटेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग करनी होती है। अब क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग हो गई है, अब वो स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद सेल के अंदर भी जाना है ड्रग को। अब वहाँ पर अंदर जाने के लिए उसे वापस से आयनाइज्ड फॉर्म में डेवलप करना पड़ेगा खुद को। अब वहाँ पे वो चेंज होगा आयनाइज्ड फॉर्म में, तब जाके वो सेल बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। फिर सेल बैरियर क्रॉस करने के बाद वो वापस से आयनाइज्ड फॉर्म में होगा, फिर वहाँ पे वो दोबारा से थेरेपेटिक एक्शन शो कर पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि कोई एक अच्छा है और कोई एक बुरा है, दोनों ही हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज करो कोई एक ड्रग है जो कि है एक बेसिक ड्रग, तो उसका जो मोलर सॉल्युबिलिटी होगा, मतलब कि एसएल होगा, वो किस फॉर्म में होगा, BH प्लस बी के फॉर्म में पाया जाएगा ये। ठीक है ना, BH है एक प्रोटोनेटेड स्पीसीज और बी है एक आपका फ्री बेस, जिसको ये कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है एक आपका बेसिक ड्रग, इस वे में होता है। ठीक है, द पीएच एट विच द बोथ बेस एंड द सॉल्ट स्पीसीज आर साइमल्टेनियसली सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीमैक्स। मतलब कि स्टेट होता है जब ये दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीमैक्स। तो पीएच को हम लोग कैसे कर सकते लिख सकते हैं हम लोग, तो पीएच इज इक्वल टू पीमैक्स एंड कॉन्ग्रेंट टू द प्रोटोनेटेड प्लस फ्री बेसिस। मतलब 3 प्रोटोनेटेड होंगे और 3 फ्री बेसिस होंगे, इसको हम लोग पीमैक्स कह सकते हैं। और फॉर वीक बेस, जो वीक होते हैं बेस, उनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग सकते हैं, हमें पता है जो पीएच होगा वो पीएच मैक्स से कम होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटोनेटेड प्लस फ्री बेस। ठीक है, अब प्रोटोनेटेड 3 है तो फ्री बेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, सिमिलरली द solubility in the pH region where the free base limited pH is greater than the pH max and it is congruent to the protonated plus free base, and where we can write it as free base and protonated will be converted into the 1H 1 plus protonated by Ka. सो पी मैक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी मैक्स इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग फ्री बेस, मतलब कि अनआयनाइज्ड अपॉन में बी एच प्रोटोनेटेड यानी कि आयनाइज्ड। इस वे में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, ये रट सकते हो आप, पेपर में ज़रूरी नहीं है। सपोज ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई विल कमांड यू टू गो केबल फार्मा, वहाँ पे एक ईजी वे में बता रखा है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल वे में नहीं है, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि हाँ आप समझने के लिए उसको समझ सकते हो। तो पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या लिख सकते हो, पी के प्लस, ठीक है ना, प्लस लॉग अपॉन में एच, ये लिख सकते हो। ठीक है, इसी को आप डिफाइन कर सकते हो। पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट होता है सेम तरह का जो आयन होगा, ठीक है, वो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बफर क्रिएट हो जाता है। अब इसको मैं लिख कह सकता हूँ, देखो सपोज करो आपने एक ऐसा सब्सटेंस खाया CH3COOH। ठीक है, ये खाया, ये डिसोसिएट कैसे होगा, देखो ये डिसोसिएट होगा COO प्लस HCH3। ठीक है, इस वे में होगा। तो इसको तो छोड़ो, ये बाहर जाए, मेन चीज़ यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला, COO। ठीक है, पर अगर ऐसे ही कंपाउंड एक और है जो COON है, ठीक है, COON है, तो ये भी डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा, COO। ठीक है, बाकी कुछ भी बने वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे देखो दो आयन एक ही जैसा है, जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट होगा हमारे बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से एक बफर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बफर क्रिएट हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये था केयर वेल पे। ठीक है, ये था केयर वेल पे, जो कि एक समझने के लिए ठीक है, पर लिखने के वे में ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करा अपने नोट्स में, बाकी आप लिख भी सकते हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर। द हीट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम डेल्टा एच के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, इज रिप्रेजेंट द हीट रिलीजर एब्सॉर्ब्ड। ठीक है ना, हीट या तो रिलीज हो रहा है या तो एब्सॉर्ब हो रहा है, उसको हम लोग डिफरेंट ऐसे इस वे में लिख सकते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक वे फॉलो करता है। तो एचएस को हम लोग पॉजिटिव डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि मेजरली केस में ऐसे ही होता है। तो इंक्रीज इन सॉल्यूशन मतलब कि इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला में डिनोट कर सकते हैं, लाइक आई एन एंड एंट्रोपी मतलब मॉलिकुलर सॉल्युबिलिटी, ये लॉग है। ठीक है ना, लॉग कहते हैं इसको। आई एन मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एस, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है रिलीज हो रहा है डिपेंड करता है, और केल्विन में नापेंगे हीट को, अपॉन में आर, आर मतलब होता है गैस कॉन्स्टेंट, फिर 1/T जो कि T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, प्लस सी इज द कॉन्स्टेंट। इसको आप डिनोट कर सकते हो फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। फिर हम आगे बात करेंगे सॉल्युलाइजेशन क्या होता है। प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज इंक्लूड्स limited experiments to identify possible mechanism of the solubilizations. In general, increasing solubility in addition of a co-solvent, ठीक है, बढ़ाने के लिए हम co-solvent को डालते हैं एक aqueous system पे। Most co-solvents are like इथेनॉल डालते हैं उसकी solubility बढ़ाने के लिए, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, ग्लाइसरीन डालते हैं उनकी solubility बढ़ाने के लिए। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पे तो थोड़ा हार्ड सा है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज करो कि ये है, ठीक है, एक 2 फेज डिवाइडेड होते हैं, एक एक्वस फेज और एक ऑयल फेज। ठीक है ना,
एक्वस फेज और ऑयल फेज, यहाँ पे ऑयल फेज है और यहाँ पे एक्वस फेज है। तो एक पर्टिकुलर ड्रग को दोनों में डाला जाता है और चेक करा जाता है जो ड्रग है वो इसमें कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब डिजॉल्व हो रहा है, और जो ड्रग है वो एक्वस फॉर्म में कितना डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, फिर उसको एक रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, लाइक पार्टीशन कोएफिशिएंट POW, मतलब ऑयल डिजॉल्व इन वाटर इज इक्वल टू कितना ड्रग, ठीक है, अमाउंट ऑफ द ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फॉर्म, अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन एक्वस फॉर्म। ये है इस फॉर्मूला का मतलब, इसका मतलब, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग चेक करने के बाद अगर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे दे तो नहीं रखा है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ नेट से। ठीक है, अगर उसका आंसर 1 से कम आ रहा है डिवाइड करने पे, तो वो क्या कहता है कि वो जो ड्रग है वो एक्वस मतलब पानी में ज़्यादा डिजॉल्व है, और अगर 1 से ज़्यादा आता है तो वो ड्रग है वो एक्वस लेयर में ज़्यादा डिजॉल्व है। अगर दोनों ही इक्वल आता है, मतलब कि 0 आ जाता है, ठीक है ना, 0 आ जाता है, यानी कि 1 आ जाता है, आई एम वेरी सॉरी, 1 आ जाता है उनको डिवाइड करने पे, तो ये बताता है कि जो ड्रग है जितना ही एक्वस लेयर पे डिजॉल्व हो रहा था उतना ही ऑर्गेनिक लेयर में डिजॉल्व हुआ है, मतलब ऑयली फॉर्म में डिजॉल्व हुआ है, तो ये माना जाता है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। 1 नंबर मतलब दोनों में सेम अमाउंट में डिजॉल्व है, 1 से कम है तो आपका पानी में ज़्यादा डिजॉल्व है, अगर 1 से ज़्यादा है तो ऑयल फेम में ज़्यादा डिजॉल्व है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। फिर आता है डिसोल्यूशन। क्या होता है डिसोल्यूशन? होता है, मैंने बताया था 250 ml में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिसोल्यूशन चेक करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग पार्टिकल इन कंट्रोल बाय केमिकल फॉर्म, क्रिस्टल हैबिट, किस तरह का क्रिस्टल बन रहा है, particle size, solubility, surface area, and the wetting properties. When dissolved coupled with the equilibrium state theta, it can help identify potential biology area. It can be described by the, एक बंदे ने दिया था नॉइज विटनी इक्वेशन, ये भी हमारा सेमेस्टर 4 में है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं dC/dt dA/HB CS-C, ठीक है। dC क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, टाइम, ठीक है। dA मतलब क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, H क्या है आपका थिकनेस, ठीक है। HB क्या है आपका, HB आपका वॉल्यूम, CS क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड बाय द सॉल्यूट, और C है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द सॉल्यूशन एट टाइम t, ठीक है। ये रटने वाली चीजें, ये रट सकते हो आप। अब आगे आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक बच गया है ये वाले इसका, ये रहा स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, ये भी हमने सेमेस्टर 4 फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ा था, तो बेसिकली पीछे से उठे पड़े हैं सारे के सारे, तो क्योंकि हमें डिटेल में करना है भाई तो करना है, ठीक है। तो ये पेपर में उठते हैं इसलिए मैं अच्छे से करवा रहा हूँ। तो उसके पहले यहाँ पढ़ते हैं हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। फर्स्ट क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यू ड्रग, ठीक है। कोई भी न्यू ड्रग के बारे में हम लोग करें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, तो इसमें हम लोग नॉलेज स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग डेवलपमेंट, के लिए हमें नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है उस ड्रग का। तो ये क्या बताता है, सेल्फ लाइफ एंड द मार्केट प्रोडक्ट बताता है उसका। दूसरा इंटरप्रेट करता है वो, मतलब कि भविष्यवाणी करता है उसका जो डिग्रेडेशन प्रोफाइल है वो कैसा होगा। उसके 3 तरह के टाइप है, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी और ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। ये थे प्रोफाइल्स इसकी, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ये रहा फर्स्ट है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। तो इसमें हमारा प्राइमरी गोल है इन्वेस्टिगेशन करना और पता करना स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशंस किस तरह का इसका रखा जाए, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफाई करना कि उसमें जो एक्सिपेंट यूज करे वो किस तरह का एक्सिपेंट हम लोग यूज करें, ठीक है। द ड्रग रिक्वायर रिपीटेटिव टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है इसमें, ऑफ द इनिशियल वर्क लॉट ऑफ टेलर विद द न्यू बल्क लॉट्स। सॉलिड स्टेट इज अ स्लोअर एंड डिफिकल्ट फॉर टू इंटरप्रेट देन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में सॉलिड्स को सॉलिड स्टेट बहुत ही धीरे धीरे पता होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसका इंटरप्रेट करना, मतलब इसके बारे में पता लगाना। तो कुछ प्रोसीजर्स है जिसके वे से हम लोग पता कर सकते हैं, जो कि हमारा वेट क्वांटिटी ऑफ सैंपल प्लेस्ड इन ओपन स्क्रू कैप वाइल, एक वाइल ले लेंगे, ठीक है, सैंपल्स को पुट कर देंगे और स्क्रू नहीं लगाएंगे उसमें। एक्सपोज इन वेरियस कंडीशंस, वे में उसको एक्सपोज करा जाएगा। सपोज करो एक को करा जाएगा हीट में रखा जाएगा, एक को ह्यूमिडिटी में रखा जाएगा, एक को लाइट में रखा जाएगा, ठीक है, कम से कम 12 हफ्तों तक। अब उसकी जो कंडीशन स्टोरेज कंडीशन है होनी चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर है, अगर आप बाहर रख रहे हो तो 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अगर आप ह्यूमिडिटी फॉर्म में रख रहे हो तो वहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लाइट बॉक्स क्या होना चाहिए, जो जिस बॉक्स में आपने रखा है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर ग्लास होना चाहिए या फिर एम्बर ग्लास होना चाहिए, येलो ग्रीन ग्लास होना चाहिए, या फिर ऐसा ग्लास नॉर्मल ग्लास भी रख रहे हो तो पर वहाँ पे कोई भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो सपोज करो तो वहाँ पे एम्बियंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ऑक्सीजन के लिए जगह होना चाहिए, नाइट्रोजन के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है। अगर 70 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो तो एम्बियंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मैंने बताया था एम्बियंट ह्यूमिडिटी ये होता है। 90 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो तो वहाँ पर भी एम्बियंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। यूलेटेड टेम्परेचर में कैसे स्टडी करते हैं हम लोग, ये रहा स्टडीड एट, बहुत सारे अलग अलग टेम्परेचर में रखा जाता है उसको एम्बियंट ह्यूमिडिटी के साथ, और उसके फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहे होते हैं ना हर वीकली, तो उसको चेक करा जाता है और नोट करा जाता है। इफ चेंज, कोई भी अगर चेंज देखने को मिलता है आपके सैंपल पे इन लोअर टेम्परेचर, और अगर नहीं देखने को मिलता है 30 दिन के बाद भी 70 डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस रखने पर भी, तो आपका जो कंपाउंड बनाया है वो एकदम उसकी जो स्टेबिलिटी वो एक्सीलेंट है। स्टेबिलिटी अंडर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखा जाए और वहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करा जाए तो कैसे करेंगे? सैंपल एक्सपोज टू डिफरेंट आरएच कंडीशन, बहुत सारे आरएच कंडीशन बनाए जाते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन बनाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसमें नॉर्मल होती है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। और सब एक अलग अलग वायल को अलग अलग जगह पे पुट करा जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद चेक करा जाता है उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। अगर वो कंट्रोल कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, तो आपका जो सॉलिड है वो पास हो जाएगा टेस्ट में। फिर आता है सॉल्यूशन, अगर आप बना रहे हो पेरेंटल सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टेबिलिटी चेक करी जाती है? तो मेजरली 4 चीज़ें, हाइड्रोलाइजेशन, और भी एक और चीज़ था, रिडक्शन भी था पर इसमें कंक्लूड नहीं है। हाइड्रोलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस एंड रेसिमराइजेशन, ठीक है। तो हाइड्रोलाइजेशन क्या होता है? पानी का इन्वॉल्वमेंट, अगर वो पानी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो क्या होगा? तो कुछ कंपाउंड है, जैसे कि मान लो ईस्टर ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, ये लोग ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ईस्टर्स हो गया, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, प्रोपेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये लोग ईस्टर से ही बने हुए रहते हैं, इनके अंदर ईस्टर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ईस्टर कंपाउंड होते हैं। तो जब ईस्टर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो इसके बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और यहाँ पे अल्कोहल और एसिड तैयार हो जाता है। ऐसी अमाइड का भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है पानी के कांटेक्ट में आते ही साथ। जिससे सपोज करो ये अमाइड है, ठीक है, जब पानी ऐड होगा यहाँ पे तो यहाँ पे है ना बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे एसिड तैयार हो जाएगा और यहाँ पे अमाइन, अब डिपेंड करता है 1 डिग्री अमाइन है 2 डिग्री अमाइन है, तो वो तैयार हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स और डाइबुकिन, ठीक है। एस्पिरिन भी आप लिख सकते हो। लैक्टम ग्रुप भी था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दे नहीं रखा है वैसे। बाकी लैक्टम ग्रुप भी होते हैं, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लैक्टम ग्रुप के एग्जाम्पल है एमोक्सिलिन, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। फोटोलाइसिस क्या होता है? फोटोलाइसिस मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन हो जाना, डिकम्पोजिशन हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, के फॉर्म पे एनर्जी आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कोई भी सब्सटेंसेस। अब क्योंकि लाइट के साथ वो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिल सकता है। उसके रिंग में कोई चेंज आ सकता है या फिर पॉलीमराइजेशन हो सकता है। पॉलीमराइजेशन होता है जैसे एल्डिहाइड का मिलना, मतलब एक्युमुलेशन हो जाना, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है। तो मॉडिफिकेशन हो जाता है पॉलीमराइजेशन में। तो उसका एक इक्वेशन दे रखा है, इसके साथ हम लोग पता कर सकते हैं, वो आप रट सकते हो। तो शॉर्टन द वेवलेंथ, जितना ही कम वेवलेंथ होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी पर मॉलिक्यूल में और इजीली डिग्रेड कर देगा वो आपके कंपाउंड को, ठीक है। रेसिमराइजेशन क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज लॉसेज इज ऑप्टिकली एक्टिविटी विदाउट चेंजिंग इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ये होता है रेसिमराइजेशन। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि डेक्स्ट्रोफॉर्म या फिर लीवोफॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल लीवो एड्रेनलिन है, वो ज़्यादा ही एक्टिव होती है 15 से 20% इन कंपैरिजन टू द डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन, ठीक है। सो रेसिमिक मिक्सचर शोज हाउ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो रेसिमिक मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के प्रेजेंस में वो अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेता है। डेक्ट्रो से लीवो भी हो सकता है, लीजो से डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है रेसिमराइजेशन हो जाता है, दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं उसको। तो मतलब अपना जो पहला जो फॉर्म था वो चेंज हो जाता है, ये समझ लो आप। और चेंज हो गया तो जिसकी वजह से वो अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी खो देगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या? इन द प्रोसेस विच इनांशियोमर ऑफ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। ये तो अलग चीज़ है। टॉक्सिकल लेवल कम हो जाना आपको लग रहा होगा, पर इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कम हो रहा, हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, ठीक है। कई कंपाउंड है जो लीवो फॉर्म में अच्छे होते हैं बट एक्स्ट्रा फॉर्म में वो टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। इन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो सेल्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है और लाइट के प्रेजेंस में भी इफेक्ट हो सकता है ये चीज़। कहीं ना कहीं ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग दिस। अब कुछ बात करें तो जो एल इपेनफ्राइन, जिसको हम लोग शायद एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं जहाँ तक मुझे याद है, इस बताया मैंने आपको 15 से 20% मोर एक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू द डी एपिफ्राइन मतलब एड्रेनलिन। मीथाडोन जो है वो आइसोमर है, जो आइसोमर है उसका ओपॉइड का दोस्त है, ओपॉइड एगोनिस्ट है। और जो दूसरा फॉर्म है वो एनएमडीए का दुश्मन है, एंटागोनिस्ट है। तो ऑप्टिकली से अगर एक ब्रीफली वे में पूछा जाए तो रेसिमराइजेशन मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिवेट बना दे, उसको हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इसका एग्जांपल एल्डिहाइड का डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे एल्डिहाइड ग्रुप मिलके एक बड़ा सा चेन बना लेते हैं एल्डिहाइड का, तो एक पॉलीमर फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने एक और टॉपिक ऐड करा है जो पेपर में बहुत कम चांसेस है उठने के, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो साथ ही साथ कैसे बचा सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन को आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो और बचा कैसे सकते हो? ये रहा, मॉइस्चर पैकेट का यूज करके, मतलब ऐसा पैकेट यूज करें जिसके अंदर मॉइस्चर जाए ना, ये ऑक्सीडेशन बचा सकते हो, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस को बचा सकते हो। बफर्स का यूज कर सकते हो, वहाँ पे कैफीन का यूज कर सकते हो ताकि जितने भी मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर ले। सिलिका जेल्स का यूज कर सकते हो और केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर सकते हो ताकि वो जल्दी हाइड्रोलाइज ना हो पाए, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे लिख रखे हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड है, जैसे अल्कोहल है, वो ऑक्सीजन में मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है।
इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, ठीक है। ये मैंने बताया था रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन भी टॉपिक था जिसमें कंसीडर नहीं है, इसलिए इसको मैंने केवल फार्मा से लिया है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके BHA BHT का, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और कंटेनर को ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भर, जैसे चिप्स का पैकेट्स होता है आपके, तो ऐसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर लास्ट टॉपिक बचता है वो छोटा सा, ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। स्टेबल एंड इफेक्टिव डोज फॉर्म डिपेंड नॉट ओनली ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट बट ऑल्सो ऑन केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एक्सिपिएंट, ठीक है ना। किस तरह का एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पैक्टफुल होता है। एंड इनकम्पैटिबिलिटी में रिजल्ट चेंज इन, क्या क्या चेंज हो सकता है, सपोज कर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज देखने को मिल सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज देखने को मिल सकता है, माइक्रो बायो अवेलेबिलिटी चेक देखने को मिल सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है आपको। तो कुछ यही थे, ड्रग एक्सिपिएंट का जो कंपैटिबिलिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए आपके, ठीक है। लास्ट टॉपिक है जो 10 नंबर में उठता है, BCS मतलब कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये गॉर्डन एमिडॉन एंड उसके टीम 1955 में बनाया गया था। डेफिनेशन क्या है, द फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द साइंटिफिक framework for classifying a drug based on the aqueous solubility and intestinal permeability and the dissolution rate। सिंपल सा बताऊं मैं आपको, तो ये इसलिए रखा गया था ताकि जब हम रियल में वो ड्रग खाएंगे तो हमारे पेट में जाके वो एक्वस में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में वो इजीली अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा किसी भी सेल मेम्ब्रेन के, और वो डिजोल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ को पता करने के लिए BCS सिस्टम बनाया गया, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। तो इसमें फैक्टर फैक्टिंग क्या था, किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, सॉल्युबिलिटी, पेट में जाकर सॉल्युबल है या नहीं है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, परमेबिलिटी, और वो डिजोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है हमारे इंटेस्टाइन में या फिर बॉडी में, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्वेंट इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड द प्रेशर एंड द pH, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। द हायर सिंगल डोज इज कंप्लीटली डिजोल्व in 250 ml in the pH of 1 to 7 in 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे। परमिलिटी क्या है, परमिलिटी ऑफ द ड्रग इज द पास ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो कि होता है लिपोफिलिक कंपाउंड का। हाईली मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा पास कर पाता है तो वो परमिलिटी ज़्यादा है, अगर कम कर पा रहा है तो उसकी परमिलिटी कम है, ठीक है ना। अगर आपने एक 90% ड्रग को खाया है। डिसोल्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड ड्रग सब्सटेंस इज सॉल्युबलाइज्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। दैट इज मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड फेज टू द लिक्विड फेज, मतलब कि मान लो नमक चीनी है, उसमें सॉरी पानी है, उसमें हमने पैरासीटामोल को डाला है, तो कितना टाइम लेगा वो डिजोल्व होने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने में, ठीक है। एक सॉलिड फेज का पार्ट से लिक्विड फेज के पार्ट बनने तक, ठीक है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। अगर वो तुरंत हो जा रहा है तो उसकी डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा है, अगर वो बहुत टाइम ले रहा है तो उसका डिसोल्यूशन बहुत कम है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है डिसॉल्व होने में, अब क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है तो जितने तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर वो बहुत टाइम ले रहा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो 4 घंटे लिए उसने डिजोल्व होने में, अगर 4 घंटे में डिजोल्व हो रहा है, इतने में आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लाइक यूरिन है, वही निकाल देगा आपको, तो बॉडी में इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा। तो ना ही डिसोल्यूशन रेट जल्दी होना चाहिए, जल्दी हो जाए तो ठीक भी है कहीं ना कहीं, बट जल्दी का मतलब ये है उसकी बायोलिटी ज़्यादा होगी, और अगर लेट है तो हो सकता है उसकी बायोलिटी कम हो जाए हमारे आपकी बॉडी में, ठीक है ना। ये था आपका। तो 30 मिनट यूजिंग यूएसपी एपरेटस, और उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना। एपरेटिस उसको घुमाया जाता है 100 RPM में, एक डिवाइस होता है बाहर, उसको है ना घूमता रहता है, पानी डाल दोगे और उसमें पैरासिटामोल की गोली डाल दो, उसको घुमाते रहो, ठीक है, 100 RPM पे 30 मिनट तक, तो तब देखा जाता है कि वो डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर एक एपरेटिस होता है उसमें 50 RPM पे घुमाया जाता है इन 19 ml ऑफ बफर, जिसके अंदर पीएच ये होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ NaCl का HCl का कंपाउंड होता है, मतलब एक पेट की तरह पे कंडीशन बनाया जाता है, जैसे कि आपका जो स्टमक में कंडीशन होता है ना, वैसे ही कंडीशन वहाँ पे बनाया जाता है और RPM पे रोटेट करा जाता है ताकि उसका डिसोल्यूशन रेट चेक हो पाए। तो एक चार्ट तैयार करा गया है। तो क्लास 1 में आता है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फिर क्लास 2 है जिसमें परमेबिलिटी सॉल्युबिलिटी तो कम होती है पर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर एक क्लास 3 होता है जिसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पर परमेबिलिटी कम होती है। क्लास 4 है जिसमें दोनों ही कम होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और अच्छे से डिजॉल्व भी हो सकते हैं। अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते पर डिजॉल्व हो पाते, अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते पर डिजॉल्व नहीं हो पाते, ऐसे ही है ये भी, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है, तो बहुत ही ईजी मैं बताता हूँ। क्लास 1 के ड्रग दोनों ही हाई है, ठीक है। अब सपोज करो दिल की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, दिल दर्द हो रहा है, तो उनको चाहिए एकदम तुरंत इलाज, है ना, तभी वो उनकी जान बच पाएगी। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो तुरंत इफेक्ट शो कर देते हैं। अब इससे याद कर सकते हो आप, क्योंकि वो जल्दी इफेक्ट शो कर रहे हैं, तुरंत तुरंत 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, तो ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि वो जल्दी गए, जल्दी सॉल्युबल हो गए और जल्दी परिमेबल हो गए और जल्दी से हार्ट पे चले गए। तो इससे याद कर सकते हो प्रोपेनोलोल, वीरापामिल, मेटोप्रोलोल, ठीक है ना, ये तो नामी ड्रग्स है, याद कर सकते हो। फिर क्लास 2 में क्या था, सॉल्युबल मतलब पेट में आपने खाया, वो टूटने में टाइम लेगा, पर एक बार वो टूट गया तो तुरंत चला के इफेक्ट शो कर देगा जाके। तो नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफेन, ठीक है ना। अब नेप्रोक्सन होता है माइग्रेन में दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, आधा घंटा, पर वो माइग्रेन की तरफ तुरंत ठीक कर देता है, बहुत अच्छा ड्रग है।
ठीक है, मैंने बोला थोड़ा टाइम लेता है, तो टाइम कहाँ पे ले रहा है, टाइम आपका पेट में जाके डिजॉल्व होने पे टाइम ले रहा है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक कैट्रोल डीटी है ना, कैट्रोल डीटी करके आता है एक ड्रग, वो भी यही काम करता है आपका। ठीक है ना, फिर आता है क्लास 3 के ड्रग, मतलब गैस के ड्रग। ये पेट में जाके तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको तुरंत इफेक्ट शो देखने को मिलता है। ठीक है, तुरंत इफेक्ट देखने को मिला है आपका गैस की गोली का। पर अब उसको कहीं जाना ही नहीं है, तो परमिलिटी थोड़ा लो होते हैं, तो इसलिए रेनिटेडिन, ठीक है ना, वैंकोमाइसिन, ये सब जो ड्रग है आपके, तो आप रेनिटेडिन याद रखो, मतलब गैस की गोलियां तुरंत इफेक्ट शो तो करती है, मतलब पेट में जाकर तुरंत डिजॉल्व हो पाती है, पर जो परमिलिटी है वो थोड़ी कम है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फ्रूसीमाइड क्या है, एंटी डायबिटिक है ना, सॉरी डायूरेटिक्स है, आई एम सॉरी डायूरेटिक्स है। तो ये बहुत लेट काम करती है, पर अच्छा काम करती है, पर थोड़े देर के लिए काम करती है, ऐसे याद कर सकते हो आप। पेट में जाएगी, टाइम लेगी डिजॉल्व होने पे, फिर टाइम लेगी शरीर के अंदर जाने में। ठीक है, इसलिए जिसके इसके वजह से वो थोड़ा टाइम तक ही शो इफेक्ट कर पाती है, फिर उनका असर तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्यूरिसिमाइड हाइड्रोक्लोरथाइयाजाइड्स। ठीक है, तो क्लास 1 के ड्रग है, जो हमारे मार्केट में जितने भी ड्रग है ना, क्लास 1 के ड्रग 5 से 10% ही है, और ज़्यादातर वो ओरल रूट में ही दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हाई है, तो उसको पेरेंटल बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों ही हाई है, तुरंत इफेक्ट शो कर देती है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, थेरेपेटिकल एक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो क्लास 2 के जो ड्रग्स हैं, ठीक है ना, जैसे सर दर्द की दवाइयाँ हैं, वो मार्केट में 70% कैप्चर कर रखी है, इनको भी ओरल वे में ही दिया जाता है, क्योंकि दोनों ही देना ईजी है, हाई है, पर एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है, पर डिजॉल्व लेट होता है, जिसकी वजह से जो इसका बायोअवेलेबिलिटी है वो कंट्रोल्ड वे में होता है, धीरे धीरे करके रिलीज होता है। ठीक है ना, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक ये देखने को मिलता है इसका असर आपको आपके बॉडी में। फिर क्लास 3 के ड्रग है, उनको भी ओरल ही दिया जाता है, पर लिमिटेड अमाउंट में ये बनते हैं। ठीक है ना, 5 से 10% कवर कर रखा है मार्केट को, और जल्दी जाके पेट में घुल तो जाते हैं, पर बायोलिटी इनकी लिमिटेड होती है, कुछ समय तक ये होती है, जैसे रेनिटिडिन। फिर आता है क्लास 4, 10 से 20% ही है, पोअरली एब्जॉर्ब है, पुअर सोल्यूबल है, डिसोल्यूशन रेट कम है, सब कुछ कम है, इसलिए इसको ज़्यादातर किसमें दिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, पर ओरल फॉर्म में भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन क्या है इसके, ताकि वीवो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग बेस्ड ऑन 2 तरीके के चीज़ों से बेस करा जाता है, उसको डिफाइन करा जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी परमेबिलिटी क्या है, उनके बेसिस में इनको परफॉर्मेंस चेक दिया जाता है। एड इन अर्ली स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च, अगर कोई भी हमें एरर दिखता है, कोई भी चीज़ कम लगता है, तो उसको हम लोग पहले ही ठीक कर सकते हैं अर्ली स्टेज बनाते वक्त। हेल्प इन डिसाइडिंग ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी, किस वे में देना चाहिए, उसको सॉलिड फॉर्म में बनाना ठीक होगा, लिक्विड मतलब सिरप बनाना ठीक होगा, या पेरेंटल बनाना ठीक होगा, तो उसमें हमें वो टेक्नोलॉजी के वे में पता लग जाता है कि किस फॉर्म में बनाए। बायोवेयर कंसिडरेशन रखा जा सकता है, उसको उस वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैव इन विट्रो स्टडी डेटा, डोंट हैव इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज डेटा, गेट रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है, ये एक पैटर्न है। फिर कुछ कंडीशंस क्या है इसके, ड्रग हाई सॉल्यूबल एंड ड्रग हाई परमिएबल, मतलब एक ड्रग को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ब्रॉड थेरेपेटिक इंडेक्स पास करना होना चाहिए, हायर प्रोडक्ट रैपिड डिजॉल्विंग होना चाहिए, और एफडीए से अप्रूव वे एक्सिपिएंट का यूज़ होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में TiO2 मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है, वो अमेरिका वगैरह में बैन कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ सम रीजन, शायद कैंसर वैंसर कर रहा था, पर इंडिया में वो धड़के से यूज़ हो रहा है। तो कुछ और भी है, मैंने आगे इसमें ऐड कर दिया है, बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर केवल मुझे ठीक लगा तो मैंने कर दिया। अ ड्रग इज कंसिडर हाई सोल्यूबल इन, ये बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया, सिग्निफिकेशन भी बता दिया मैंने, यूजफुल बनाने के लिए किस डोजेज फॉर्म को बनाया जाए, क्वालिटी कंट्रोल कैसे डेवलप करा जाए, बायोबिलिटी उसका कैसे अच्छा रखा जाए। ठीक है ना, और मेन है IVIVC में यूज़ करा जाता है। IVIVC क्या है, इन विट्रो इन विवो को रिलेशन, मतलब हमारे बॉडी के बाहर एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट शो कर रहा है वो ड्रग, और अगर बॉडी के अंदर वो जब चेक करा गया, तो बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर एकदम रियल लाइफ में कैसा है वो चेक करा जा सके। स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है, इन द स्टेबल क्वालिटी बीइंग स्टडी, क्वालिटी जो है उसका स्टडी है या नहीं है, कहीं बाद में तो चेंज नहीं हो रहा है कुछ, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इन्फ्लुएंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ भी कुछ चीज़ें होती है जो अनस्टेबल हो जाते हैं। सम फिजिकल, केमिकल एंड द माइक्रो बायोलॉजिकल चेंज इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस, एफिकेसी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल ड्रग प्रोडक्ट। फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी मतलब ड्रग के अंदर, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का चेंज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट, प्योरिटी, क्लैरिटी एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है ना, केमिकल डिग्रेडेशन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो जाना, हाइड्रोलाइसिस हो जाना, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, पर इसमें भी आप बना के लिख सकते हो। माइक्रोवेल चेंजेस बताइए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसके अंदर, तो इसकी वजह से डिग्रेड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, टाइम टू टाइम पे वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनएक्टिव में बदल जाता है, तो कुछ ये चीज़ें देखने को मिलती है आपको। फिजिकल चेंज देखने को मिल सकता है, थेरेपिटिकल टॉक्सिकोलॉजिकल बिहेवियर बढ़ सकता है उसका। ठीक है ना, और पहले तो वो अच्छा था, पर वो बाद में अपना स्टेबिलिटी लूज कर देता है। ठीक है, और इसकी वजह से स्टडीज एंड कंडक्टेड रिकमेंडेड होता है, जैसे कि उसका स्टोरेज कंडीशन, सेल्फ लाइफ पता करने के लिए एक ड्रग का। ठीक है ना, कि किस वे में स्टोर करा जाएगा उसको, सनलाइट से दूर रखना है, कुछ भी ड्रग होते हैं जिनको फ्रिज से दूर रखना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ पता करी जा सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में स्टडी था जो मैंने करवा दिया है आपका। स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, मैंने आपको करवा दिया है। इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करा जाता है, ताकि इसके स्टेबिलिटी के बारे में पता लग सके।
और इसके अंदर हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन के कैसे इनको बचाया जा सके, मतलब ये इफेक्ट किस वे में करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म को। ऐसे ही इसी तरह है सॉल्यूशन का भी, सेम वही चीज़ है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करा जाएगा। बहुत ओरल एंड पेरेंटल वे में दिया जाता है, जैसे सिरप हो गया और पेरेंटल इंजेक्शन हो गया। कंपेटेबिलिटी स्टडीज क्या होता है मैंने आपको बताया, इन दिस वी स्टडी अबाउट द ड्रग एक्सिपिएंट, मतलब कि ड्रग है वो जब एक्सिपिएंट के साथ मिला के बनाया जाता है तो कहीं वो आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रही है, या रिएक्ट करने के बाद कुछ टॉक्सिक लेवल तो नहीं बना रही है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं बना रही जो हमें नहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं शो कर देगी। तो इंट्रैक्शन के बारे में पता करा जा सकता है ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में कैसे किस तरह से कोई इंट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे कम करा जा सके, अगर हो रहा है तो कैसे इस एक्सिपिएंट का यूज़ ना करके दूसरे एक्सिपिएंट का यूज़ करा जाए, एंड हाउ दे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग कंपाउंड। तो ये था आपका कंपेबिलिटी स्टडीज। फिर प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ द डोजेज फॉर्म, क्या क्या कंसिडरेशन रखा जाता है उसको बनाने से पहले। बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द डोजेज फॉर्म वी हैव टू कंसिडर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का मतलब क्या है, ब्रीफ में बताया जाए तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना। मोस्टली यूज ज़्यादातर हम लोग क्या बनाते हैं, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म ही बनाते हैं, और क्योंकि जो सॉलिड होता है वो स्टेबल होता है, हाई सेफ्टी होता है, उसका लो कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है, और लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। कंसिडरेबल पॉइंट्स जैसे कि एक अच्छा एपीआई को सेलेक्ट करा जाए, एपीआई मतलब होता है एक्सिपिएंट, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो मेन कंपाउंड है ना, जो रियल दवाई है, जो रियल डिजीज को ठीक कर रहा है वो कंपोनेंट, उसको सिलेक्शन करना। दूसरा, सेलेक्ट कर लिया, 5-6 सेलेक्ट हो गए, जैसे कि मान लो आप बना रहे हो सर दर्द की दवा, तो 5-6 ड्रग हो गया, नीमोस्लाइड हो गया, नेप्रोजेन हो गया, ठीक है, आइबुप्रोफेन हो गया। अब ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब फिर आइडेंटिफाई करेंगे एपीआई में से कौन सा अच्छा है, आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। सपोज करो आपने नेप्रोजेन चूज कर लिया, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स। अब अलग अलग कंपोनेंट सेलेक्ट करा जाएगा कि किस तरह के डब्बे में रखा जाए, अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉलिड है तो किस तरह के स्ट्रिप्स में रखा जाए, कहीं वो इंटरेक्ट ना कर जाए। कुछ ड्रग होते हैं जो किसी मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद टॉक्सिक लेवल बना देते हैं, तो वो अच्छे से स्टडी करा जाए, ठीक है। और किस तरह के डाइल्यूएंट में उसको मिलाया जाए, ठीक है, नीमोस्लाइड को, अगर एंटायरिक कोटेड बनाते हैं तो किस तरह का एक्सीपेंट यूज़ करा जाए, ये सब चेक करा जाए। और मेन चीज़ यही है कि आपस में वो रिएक्ट ना करे, मेन चीज़ यही है। सिलेक्शन ऑफ, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका कैसे करा जाए, किस किस शेप में उसको बनाया जाए, ठीक है ना, ओवल शेप में बनाया जाए या फिर स्क्वायर बनाया जाए या फिर एक सर्कल बनाया जाए, ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेनर, किस तरह का कंटेनर यूज़ करा जाए, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील का टैबलेट फॉर्म में बनाया जाए तो उसका जो पाउच होगा, ठीक है, वो किस वे में बनाया जाए। फिर उसको एनालाइज कैसे करा जाए, एनालिटिकल मेथड होना चाहिए उसका, कि नीमोस्लाइड जो बनाए उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, उसका टॉक्सिक लेवल चेक करा जाए। तो कुछ प्रॉपर्टीज उसके हैं जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलैप्टिक वे में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, प्योरिटीज का चेक कर सकते हैं, पार्टिकल साइज, उसका शेप, बिहेवियर स्टडी करा जा सकता है, ताकि हम लोग उसका फ्लोइंग प्रॉपर्टीज और डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन और मिलने की प्रक्रिया उसकी चेक करा जा सके, उसकी सॉलिबिलिटी चेक करा सके, सॉलिबिलिटी प्रोफाइल चेक करा जा सके, फ्लोइंग प्रॉपर्टी चेक करा जा सके, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करा जा सके। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके अंदर मिक्स है। उस टेक्निक्स के द्वारा हम लोग उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक्सरे डिफ्रेंशिएशन एंड और भी बहुत तरह के गैजेट्स हैं। माइक्रोस्कोपी मतलब कि लेंस होते हैं ना, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनके द्वारा उसकी पार्टिकल साइज के बारे में पता करा जा सकता है, शेप और थिकनेस के द्वारा, मतलब चीज़ थिकनेस पता करी जा सकती है ड्रग की। क्रोमेटोग्राफी होता है इसके अंदर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, HPTLC भी होता है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। तो ये सब कुछ गैजेट थे जिनके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये था आपका एक पूरा चैप्टर जिसका नाम था प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार हो, पर जो मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा है और ये नोट्स तैयार करा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड बिफोर एंडिंग अगेन लेट मी क्लियर इट दैट ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाया है रिवीजन पर्पज़ के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि ये वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये अपलोड कर दिया है। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, पर नोट्स बहुत अच्छे हैं। महेंद्र प्रताप सर और केयरवेल और कुछ अलग अलग जगह से मैंने बनाने के लिए ट्राई करा है नोट्स, और मैंने जानबूझ के चेंज नहीं करा है कुछ भी। जो जिनका नोट्स है उन्हीं की हैंड राइटिंग मैंने रखी है, इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, साथ ही साथ